السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کو بلا سودی قرضوں کے اجرائی۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں پروگرام، نائب وزیر اعلیٰ کا خطاب، سالانہ 20,000 کروڑ روپے کے بلا سودی قرض۔ ریاست کی عدالتوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور عملے کے تقررات کے لیے تیار رہیں۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ H1B ویزے پر ٹرمپ کے فیصلے پر مرکزی حکومت خاموش کیوں ہے؟ سریدر بابو کا سوال۔ امریکہ کے فیصلے پر مودی کی خاموشی بڑی غلطی، بیرسٹر اویسی نے بھی اٹھائے سوال۔ کشائی گڑھ میں شوہر کے ہاتھوں ہوا بیوی کا قتل، نیند کی حالت میں گلا کاٹ دیا گیا، ملزم فرار، تلاش جاری۔
सिकंदराबाद बोलाराम बाजार रेलवे स्टेशन पर पटरियां अबूर करने के दौरान 2 नौजवान ट्रेन की टक्कर से हलाक। और दुबई से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची खातून के पास से गांजे के पानी में काश्त किए जाने वाले 12 करोड़ रुपए के पौधे जब्त, DRI की कार्रवाई। और पेश खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर खड़ा करने और उन्हें खुद मुक्तफ़ी करने हुकूमत हर साल 20,000 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्ज जारी कर रही है ताकि वो रहन सेंटर से निजात हासिल कर सकें। नायब वज़ीर आला हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन में बिलासूदी कर्ज प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को अब रहन सेंटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने शिकवा किया कि गुज़िश्ता 10 साल से ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन ग्रुप्स के अरकान की तादाद बढ़कर 63 लाख हो गई है। MEPMA के तहत 41.51 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्ज जारी किए गए। जुबली हिल्स हल्के में 8,130 ख़वातीन को इससे मुस्तफ़ीद किया गया है। उन्हें छोटे कारोबार करने के लिए यह कर्ज दिया जा रहा है। हुकूमत ने हर साल 20,000 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्ज की इजराई का निशाना मुकर्रर किया है और पहले ही साल 21,632 करोड़ रुपए कर्ज जारी किए गए। ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए शिल्पारामम में 100 दुकानें अलॉट की गईं। उन्हें बसें खरीदने फंड्स दिए गए। ये 20 RTC लीज पर चला रही है और इन बसेस की तादाद 150 है। इसको बहुत जल्द 450 कर दिया जाएगा। RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र से अब तक 222.50 करोड़ रुपए मालियत के मुफ्त सफ़र से इस्तेफ़ादा किया जा चुका है। राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलतें दी जा रही हैं। राशन कार्ड पर फ़ी फ़र्द 6 किलो मुफ्त चावल दिया जा रहा है। नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। बरखी की 200 यूनिट्स तक मुफ्त सरबराही और दीगर स्कीमात का भी उन्होंने इस मौके पर तस्करा किया। MCHRD में तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिशादरी, लॉ सेक्रेटरी बाल रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान रियासत में अदलिया की बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अमले के तकर्रुरात के उमूर पर भी बातचीत हुई है। चीफ जस्टिस ने कई अजला में अदालतों की इमारतें, बुनियादी ढांचों की फराहमी के साथ साथ अमले के तकर्रुरी के इक़दाम करने की हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तजावीज़ पर कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर रियासत के मुख्तलिफ अजला और नए अजला में अदालतों के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करने और अमले के तकर्रुरात के लिए तैयार है। तेलंगाना के वज़ीर सनत D श्रीधर बाबू ने ट्रंप के H1B वीज़ा के फैसले पर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सख्त मज़म्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से तेलंगाना के नौजवानों और भारत की मईशत को शदीद नुकसान होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अमेरिका की जानिब से H1B वीज़े के लिए $1 लाख फीस का कानूनी भारतीय कंपनियों के लिए भारी नुकसान होगा। श्रीधर बाबू ने सवाल किया कि मरकज़ी हुकूमत अमेरिका के इस फैसले पर आखिर खामोश क्यों हैं। मोदी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सिफारती सतह पर अमेरिका से बात करें और H1B वीज़ा होल्डर्स को वक्ती रिलीफ दिलाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने खबरदार किया कि ट्रंप के इस फैसले से भारत के साथ साथ तेलुगु रियासतों को भी बड़ा खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सही फैसला वक्त पर न ले तो मुल्क को भारी नुकसान होगा। इस फैसले पर मोदी हुकूमत का खामोशी इख्तियार करना मोदी की बड़ी गलती है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H1B वीज़े की फ़ीस में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ट्रंप ने बुनियादी तौर पर H1B वीज़े के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। ख़ास तौर पर तेलंगाना और आंध्रा के नौजवान जो इससे इस्तेफ़ादा कर रहे थे उन्हें नुकसान होगा। बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था कि इसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा और हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी इसके बारे में क्या कहेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि H1B वीज़ों में से 71-72% हिंदुस्तानियों को जाते हैं, जबकि आंध्रा और तेलंगाना के नौजवान इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। हिंदुस्तानी H1B रखने वालों की सालाना तनख्वाह $1,20,000 है, जो IT शोबे में मिला करती है। मुल्क के NRI डिपॉजिट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 37% हिस्सा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रंप से हमें शिकायत नहीं, लेकिन हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ। वो तमाम NRIs जिन्हें मेडिस स्क्वायर पर जमा किया गया था, इससे क्या हासिल हुआ। सालगिरह की मुबारकबाद खारिजा पॉलिसी की कामयाबी नहीं है। H1B वीज़े का खात्मा हिंदुस्तानियों को निशाना बनाना था। अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़तरे में डालना इस बात का सबूत है कि इसे हमारे स्ट्रेटेजिक इक़दार की कदर नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इन्हराफ से मुताल्लिक़ BRS पार्टी के लीडर्स के इल्ज़ामात को मज़ा का खैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS के लीडर्स ऐसी बात कर रहे हैं जैसा कि राक्षस वेदों का बात कर रहा हो। KCR इन्हराफ की सियासत के बाप हैं। कांग्रेस के इन्हराफ करने वाले लीडर्स अभी भी BRS पार्टी में मौजूद हैं। इन्हराफ करने वाले लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि स्पीकर जो भी फैसला करेंगे हम उसे कबूल करेंगे। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने कहा है कि BRS के हरीश राव और संतोष का सोशल मीडिया उन्हें निशाना बना रहा है। तेलंगाना की अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता का यह भी कहना था कि इंदिरम्मा के नाम पर बदकम्मा की साड़ियाँ न दी जाएं, बल्कि तेलंगाना की किसी शख्सियत के नाम पर साड़ियाँ दी जाएं। उन्होंने कहा कि अगर अलमाटी की बुलंदी में इजाफा किया जाता है तो हम सिर्फ कृष्णा नदी में क्रिकेट खेल सकते हैं। वज़ीर आला को इस सिलसिले में सोनिया गांधी से रब्ता करते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया से दरख्वास्त करनी चाहिए कि अलमाटी की बुलंदी को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उनका यह भी कहना था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की ज़रूरत है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू गोदावरी का पानी ले रहे हैं तो कर्नाटक कृष्णा का पानी ले रहा है। कविता ने अपने इस्तीफे से मुताल्लिक़ कहा कि उन्होंने फॉर्मेट के तहत इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन कौंसिल के सदर नशीन ने इसे कबूल नहीं किया। अगर वो चाहें तो वो दोबारा इस्तीफ़ा देंगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को किशन रेड्डी फोबिया हो चुका है। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हर वक्त मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ किशन रेड्डी फोबिया का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों के बारे में बात करने के बजाय मरकज़ी हुकूमत से सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी यूनिवर्सिटी को 1,000 करोड़ रुपए कहां से देंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि अचंपेट में साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने जो गुफ्तगू की है वो झूठ पर मबनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 इंतखाबात के एलामिया से एक दिन पहले अचंपेट इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी दी थी। वंशी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि उनके कामयाब होने के बाद कामों का आगाज किया गया तो निरंजन रेड्डी ने अदालत जाकर कामों को रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि कितनी भी रुकावटें पैदा करें, प्रोजेक्ट को तामीर करके बताएंगे। BRS के दौरे हुकूमत में पालमोर को कुछ नहीं किया। तेलंगाना रियासत को आंध्रा के वज़ीर आला ने 100 रुपये का नुकसान किया था। KCR ने तेलंगाना को 1,000 रुपये का नुकसान किया है। तेलंगाना BRS लेजिस्लेटिव पार्टी के दफ्तर का प्लास्टर गिरने का एक वीडियो सामने आया है। ताहम इस बारे में अभी मुतालिका इंतजामिया की तरफ से कोई वजाहत नहीं की गई है। BRS पार्टी का कहना है कि इमारत और शवारे के अहदेदार लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर की मौसर निगहदाश्त नहीं की जा रही है। अमेरिका में पुलिस की फायरिंग में जाँ बहक महबूब नगर के नौजवान मोहम्मद निज़ामुद्दीन की मैयत को वतन वापस लाने रियासती हुकूमत ने वज़ारत ख़ारजा को मकतूब रवाना किया है और इसकी पेशरफ्त का जायज़ा लेने एक अहदेदार को मुकर्रर किया है।
महबूब नगर के रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने यह बात बताई। वो ज़िले क़ायदीन के हमराह मरहूम नौजवान के घर पहुंचे और मरहूम के वालिद मोहम्मद हसनुद्दीन और दीगर ख़ानदान के अरकान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और उनके लिए हर मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन पार्लियामेंट डी के अरोड़ा से भी इस सिलसिले में बात की गई है। इस नौजवान की हलाकत की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए वज़ारत ख़ारजा और हिंदुस्तानी सफ़ारतख़ाने के हवाले से अमेरिकी हुक्काम से मुतालबा किया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि मरहूम नौजवान को आला तालीम के लिए अमेरिका भेजा गया था। तालीम की तकमील के बाद वो एक कॉर्पोरेट इदारे में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कई हिंदुस्तानी नस्ली तासुब का शिकार हैं। इस नौजवान की हलाकत भी इसका सबब हो सकती है, इसलिए इसकी मुकम्मल जाँच का मुतालबा किया गया है। रुकन असम्बली ने मरहूम नौजवान के वालिद को तयक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। इस मौके पर ज़िले कांग्रेस क़ायदीन भी मौजूद थे। जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हल्क़े याक़ूतपुरा में सालाना सीरत मोहसिनी इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीरी मुक़ाबलों का इनेक़ाद अमल में लाया गया। याक़ूतपुरा के 10 मराकिज़ पर यह मुक़ाबले मुनक़्क़िद किए गए और तकरीबन 7,000 तलबा ने इस मुक़ाबले में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने मुख्तलिफ़ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा करते हुए मुक़ाबले में हिस्सा लेने वालों स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री और पीजी कॉलेजेस के तलबा की हौसला अफजाई की। मुक़ाबले में नुमायां तौर पर कामयाब तलबा को 51, 21 और 11,000 रुपये नक़द इनामात के अलावा सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए हल्क़े याक़ूतपुरा के ज़ैर इल्तिवा कामों पर तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने मंजूरा कामों की जल्द मंजूरी और ज़ैर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील से मुताल्लिक़ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से जोनल कमिश्नर को वाकिफ़ करवाया। रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर पर जोर दिया कि जल्द इन कामों की तकमील को यकीनी बनाएं ताकि अवाम को राहत हो सके। मजलिस की जानिब से रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ैर अनवान तहरीरी मुक़ाबले मुनक़्क़िद हुए। मुक़ाबलों में करीब 10,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 300 उम्मीदवारों का अक्सरियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ है। उम्मीदवारों में लड़के और लड़कियां शामिल हैं। बेहतरीन मुज़ाहरे करने वालों को इनाम अव्वल 51,000, इनाम दुअम 21,000 और इनाम सोम 11,000 रुपये से नवाजा जाएगा। मुक़ाबले में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों को इनाम दिया गया, जबकि इनाम अव्वल, दुअम, सोम के मुस्तहक़ करार पाने वालों के नताइज चंद दिन में शाये किए जाएंगे। मजलिस की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला ये इंतहाई शानदार कारनामा है, जिससे न सिर्फ दीन की खिदमत हो रही है बल्कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से भी शऊर बेदारी पैदा हो रही है। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे बरक़ी मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने राजेंद्र नगर हल्का असम्बली में सब स्टेशन, बरक़ी ट्रांसफार्मर्स और एफओसी लेबर्स के लिए नुमाइंदगी की। गंडीपेट मंडल, शमशाबाद मंडल और शास्त्रीपुरम मंडल के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में बरक़ी की अदम सरबराही और ट्रांसफार्मर्स के फेल हो जाने के मसले पर बात की। इसके अलावा नई केबल लाइन और नए ट्रांसफार्मर्स के अलावा अर्बन शमशाबाद मंडल और गंडीपेट मंडल में भी नए बरक़ी सब स्टेशन लगाने के लिए नुमाइंदगी की, ताकि ट्रांसफार्मर्स पर लोड को कम किया जा सके। इस मौके पर रहमत बेग ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब भी CMD मुशर्रफ फारूकी के हवाले किया। जहानुमा डिवीज़न के इलाके अली नगर में NP2 पाइपलाइन और CC पैच वर्क्स के काम जारी हैं। इस सिलसिले में मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की नुमाइंदगी पर 23 लाख रुपए की लागत से मज़कूरा तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने गुत्तेदारों से जल्द काम मुकम्मल करने के लिए कहा, चूँकि गुज़िश्ता दिनों की बारिश के बाद इलाके की आवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी, जिस पर सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में ये काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर GSMC के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे।
कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक सनसनीखेज वाक़े में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला बोड़ा शंकर और 35 साला मंजुला को 3 बच्चे हैं। ये ख़ानदान महेश नगर कॉलोनी में हाल ही में मुकीम हुआ था। बताया जाता है कि जुमे की रात शंकर ने अपनी बीवी का जब वो सो रही थी गला काट दिया। शंकर फरार बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। लाश चूल्हे में पाई गई। क्लोज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है और तहकीक़ात जारी हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर DRI हुक्काम ने गांजे के पौधों की मुंतकली को नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई से आई खातून के पास से पहले 6 किलो पानी में उगाए जाने वाले गांजे के पौधों को जब्त किया गया। तहकीकात पर पता चला कि खातून का एक और बैग भी ताख़ीर से पहुंचा था और इस बैग से भी 6 किलो पौधे जब्त किए गए। खातून को तहवील में ले लिया गया है। जब्त किए गए पौधों की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई गई है। पता चला है कि मिट्टी के बगैर इन पौधों की काश्त पानी में की जाती है। DRI हुक्काम इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने गांजा मुंतकली की एक और बैन रियासती रैकेट को बेनकाब किया है। रेलवे पुलिस ने अलोसिबा और एक जर्नाइल को गिरफ्तार करते हुए 37.51 किलो गांजे को जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की मालियत 18,75,900 रुपये बताई गई है। रेलवे पुलिस के मुताबिक उड़ीसा से बराह सिकंदराबाद मुंबई को गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली के दीगर 2 अरकान बिक्रम राव और आमवोला लापता बताए गए हैं। सिकंदराबाद बुलरहाम बाजार रेलवे स्टेशन पर पटरियां अबूर करने के दौरान ट्रेन की टक्कर से 2 नौजवान हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त 19 साला कार्तिक और 20 साला मलिक अर्जुन की हैसियत से की गई है। एक और नौजवान जख्मी बताया गया है, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास अकोला एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से मज़कूरा नौजवान हलाक हुए। रेलवे पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हसन नगर के महमूद नगर में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 300 पुलिस मुलाजिमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। DCP ने बताया कि 5 मुकामात पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात और बिना नंबर की तकरीबन 65 टू व्हीलर्स और 6 ऑटोज़ को जब्त किया गया। तलाशी मुहिम के दौरान वो गैर कानूनी बैलेट शॉप्स, गैर कानूनी गैस फिलिंग का भी पता चलाया गया। DCP ने बताया कि इलाके में गैर समाजी सरगर्मियों से मुतालिक अवाम की शिकायत पर यह मुहिम अंजाम दी गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को बिलासूदी कर्जों के इजराई। हल्का असम्बली जुबली हिल्स में प्रोग्राम, नायब वजीर आला का खिताब, सालाना 20,000 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्ज। रियासत की अदालतों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अमले के तकर्रुरात के लिए तैयार रहें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वजीर आला की मुलाकात। H1B वीजे पर ट्रंप के फैसले पर मरकजी हुकूमत खामोश क्यों है? श्रीधर बाबू का सवाल। अमेरिका के फैसले पर मोदी की खामोशी बड़ी गलती, बैरिस्टर ओवैसी ने भी उठाए सवाल। कुशाईगुड़ा में शौहर के हाथों हुआ बीवी का कत्ल, नींद की हालत में गला काट दिया गया, मुलजिम फरार, तलाश जारी। सिकंदराबाद बोलाराम बाजार रेलवे स्टेशन पर पटरियां अबूर करने के दौरान 2 नौजवान ट्रेन की टक्कर से हलाक। और दुबई से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची खातून के पास से गांजे के पानी में काश्त किए जाने वाले 12 करोड़ रुपए के पौधे जब्त, DRI की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।